Thank you so much, sir. First of all, for giving time and opportunity to do a session with me. And the first thing I want to ask you, how life is going right now? Life has always been orgasmic, yeah. It is good. नहीं, life is always good, यार. है Okay. ना? I live on day-to-day basis. जैसा है आसपास में उतने में खुश रहता हूँ and I live every moment here. Life is good. अभी तो मेरा second batch शुरू हो गया है. Young boys and girls they started coming. Wow. So that gives me a lot of energy. Yeah. So high Josh. So, sir, the way I tried to do the session today, so I mostly want to talk about Northeast. क्योंकि मैं recently Okay. Northeast cover करके आया. I've been to not that one, Kohima and only Imphal. I've been to the districts like Noklak, Mo, and Chandel. If you talk about Manipur, so you have been working in these places, and I'm quite fascinated to understand the perspective from your side. I have understood the perspective from administration side, like how the DMs and SPs and ADGs, the police and administration works. What's your perspective? How things have been there? In Northeast? Yes, sir. In Northeast, I see it as one of the most beautiful places one can visit. But होता क्या है जब बाहर का आदमी जाता है ना, few people when they say Northeast तो अपनी comfort और अपने perspective के हिसाब से आदमी देखता है. Few people, those who look from the tourism point of view, they look at Shillong, they look at such like places, and that is the place they want to visit. They don't want to visit other places. When it comes to media people, anything which is happening there, which can give them some mileage, now so their area of interest is different. फौजी आदमी डज नॉट हैव ए चॉइस. जहां पे हुक्म मिलेगा, जहां ड्यूटी मिलेगी, वो वहां पे जाएगा. उसके लिए सारी जगह बराबर है. एंड जो लोग वहां के हैं यार, उनके लिए भी वही सेम चीज है फौजी की तरह. अपना घर सभी को अच्छा लगता है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ. आई हैव सीन 3 प्लेसेस वेरी क्लोजली. वन इज असम, वन इज नागालैंड एंड वन इज मिजोरम. One thing I'm very confident, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, I love people from Northeast and they are absolutely amazing, darling people. They're good, they're too good. ठीक है, they are people who are hardworking, number one. They are people who know how to live life. ठीक है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है. Very skilled. And तीसरी चीज अपना, yeah, and you see the kind of the community living ना. They are the people who actually are one of the best examples of community living today also in India. So if you want to see that thing, people are staying in a remote area, very remote area. They know the survival is all by sticking to one another. So whether it is a good times or bad time, they stick to each other very properly, and they always stand by each other. This is something which fascinates me about the people in North India, अपना in northeastern states. दूसरा फिर उसके बाद में भी मैंने देखा है जब वो लोग बाहर भी आते हैं ना, in search of studies, in requirement of job opportunities, you see they are very polished. Whether it is a hairstyle, whether it is wearing attire, कपड़े पहनने का तरीका, ठीक है, या कंडक्ट करने का तरीका, they carry themselves very gracefully and they stay happy. ठीक है, खुश रहते हैं. ठीक है, उसमें भी आप देखोगे वो कम्युनिटी लिविंग उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है. ठीक है, दिस इज समथिंग रियली गुड टू लर्न फ्रॉम दोस पीपल. बट ये जो है ना कि नागालैंड के बारे में किसी को पूछो तो उनकी डेफिनेशन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल बड़ा अच्छा होता है. अरे हॉर्नबिल फेस्टिवल इज जस्ट वन थिंग. उसके सिवाय भी लोग वॉर सिमेट्री में भी जाते हैं तो वॉर सिमेट्री में सिर्फ फोटो खींचते हैं. बट व्हाट पीपल शुड गो एंड सी देयर ना, वॉर सिमेट्री में देयर इज अ टाइम व्हेन पीपल है ना फ्रॉम ऑल कॉमनवेल्थ अपना नेशंस दे कम. और जो लोग नहीं आ पाते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे सेंड अपना bouquets, flowers, everything, so that they can pay homage to those people who had attained martyrdom during different operations and they are resting in peace. जो लोग फिजिकली आ सकते हैं वो लोग आते हैं, जो नहीं आते वो वहां पे भिजवाते हैं बुके, फूल वगैरह. एंड दे हैव हैड अपना पीपल एंड दे टेक केयर ऑफ देयर रिक्वायरमेंट. वो भी अपने आप में एक देखने वाली चीज है कि इतने सालों के बाद में व्हेन यू गो देयर ना, वॉर सिमेट्री में मेरा अपना नजरिया अलग है. नागालैंड में लोग सिर्फ हॉर्नबिल देखते हैं. आई हैड आल्सो बीन टू दैट प्लेस. बट उसके सिवाय जैसे वॉर सिमेट्री में, जैसे ये मैंने बताया कि एग्जांपल साल भर में वो वॉर सिमेट्री में द वे इट हैज बीन मेंटेन्ड, द वे इट हैज बीन केप्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैसेजेस दोस आर रिटन ऑन द every person who is resting in peace. आप वो मैसेजेस पढ़ो. आई एम टेलिंग यू दैट itself is a big education, you know. and असम में, नागालैंड में, मणिपुर में मैंने देखा है पहाड़ी इलाका जहां पे भी हो, लाइफ इज नॉट दैट इजी, यू नो. whether it is water, whether it is electricity. आपने मकान बनाना है, आपको फ्रूट्स चाहिए, जो बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं आपकी ना, जब वो मेन लैंड से और होता होता 10 जगह से जब वहां पहुंचता है तो चाहे वो टैक्स लगता हो, हर एक जगह कुछ भी लगता हो, पहुंचते पहुंचते द कॉस्ट ऑफ द आइटम ना इट मल्टीप्लाइज मैनी फोल्ड्स.
which people don't realize. So जो चीज एक नीचे आपको मिलती है ना, वो ऊपर बहुत महंगी हो जाती है जाते जाते। इम्पैक्ट यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता किसी तरह का उसका क्या कहते हैं, जो लोग ये लगा देते हैं बंद एंड दोस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, बट नॉर्थ ईस्ट इट टेक्स इट ऑल। चीजें 10 गुना महंगी हो जाती हैं एंड समटाइम्स इट इज आउट ऑफ योर रीच, यू नो, दैट इज आल्सो a big challenge in अपना thing, but overall यार people are lovely, they are extremely hard working। पहाड़ों में ना खाना बनाने के लिए वहां पे कोई गैस सिलेंडर नहीं आ रहा, लकड़ियां जंगल से लेकर के आना, पीठ पे लादना, बच्चे को आगे रखा हुआ है, साथ में खेती करना, ठीक है, in those conditions it's not easy, Exactly. you know? And community living is another thing. I told you I am really fond of that thing. It's something really to learn from those people. सर जैसे आपने अभी And as they say ना, all good things comes in small packets. ट्रू सर जैसे आपने नागालैंड की बात की, तो जब मैंने लास्ट अभी जस्ट 2 महीने सॉरी 1 महीने पहले मैं नागालैंड से आया, तो आई वाज देयर फॉर 2 months, so I mostly covered 4 districts. I don't know you have been to or not. I have been to Mukokchung, I've been to Tuensang, Mukokchung, Tuensang, and the newly made districts which is got separated from Tuensang, that is Noklak. I've been to Noklak and and the main city Kohima and other places. So sir, we know that you have been into that particular thing for the insurgencies and other perspectives. So being a layman, we have many other perspectives how operation take places. जैसे कुछ दिन पहले मैंने अविनाश सर के साथ एक शूट किया था पॉडकास्ट, तो उन्होंने बताया कि जो मूवीज में दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर जाके we fall from that, हाँ वो बकवास है। So what's the reality, how operations takes place? यार देखो ऐसा होता है, आपको मैं बताऊं, बड़ी ऐसी चीजें हैं which I was also surprised, you know, शायद जो नॉर्थ ईस्ट में लोग हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में when I had gone there for operation, 2 तरह के होते हैं, like I said in one of the recent podcast कि मणिपुर is one of the best example in the world, not only the country, for fighting in built up area. I was surprised to see, but ऐसा होता है ना, कई बार आपको ऐसी information आती है where you have to go to remote areas, you know, आप बाहर जाते हैं कहीं जहाँ काफी खुला है, एक घर इधर बना हुआ है, दूसरा 100 मीटर दूर है। Now वहां पे it is a large area you need to cover, you require support weapons, and I was surprised कि यूनिट के अंदर एक भी एजीएल नहीं था, यूनिट के अंदर एक भी रॉकेट लॉन्चर नहीं था। मैं वो भाई कैसी फौज है, हमारे साथ हथियार नहीं है। Then I got to know कि असम राइफल में वो ऑथराइजेशन ही नहीं है वेपन की। Why? Because thought has been given कि these kind of support or area weapons can be counterproductive and it should not cause any kind of collateral damage, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, so not required in अपना असम राइफल। So it was not there यार, otherwise it is part of the authorization of infantry unit, but वहां पे यूनिट में authorization नहीं दिया। I was really surprised. So then for that particular operation I had to take it a loan from some other infantry unit for that time, you know, मतलब सोच करके लिया गया डिसीजन कि गलती से कभी हथियार होगा तो शायद हो सकता है कोई इस्तेमाल भी करे, बट इट हैज नॉट बीन परमिटेड, ओनली ऑथराइज ही नहीं था। आप यूज तो क्या करोगे, उसकी जरूरत भी नहीं थी। सो ऑन ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी डिफरेंट, यू नो। चॉपर से गए, मूवीज में दिखाते हैं, है ना, दे गिव लव एंगल्स, दे मेक हाईली कमर्शियलाइज्ड बुलशिट, नथिंग हैपेंस लाइक दिस। नॉर्थ ईस्ट में हाउ थिंग फंक्शंस, आई टेल यू, सी एवरीबडी हैज गॉट आईज एंड ईयर्स, यू मूव आउट ऑफ द पोस्ट, वन रॉन्ग मूवमेंट, पीपल आर सो स्मार्ट। आप जैसे 100 मीटर 200 मीटर जब जाते हैं, आपको उतनी देर में एसएमएस आ जाता है कि मेजर XYZ, वेलकम, वी नो यू आर कमिंग टू दिस प्लेस, वी आर हियर टू रिसीव यू। Oh really? That is the level of intelligence. Yeah, it had happened. I said, there's no point going, you know. मैंने पहले भी बोला, मैं तो भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, you are making a wrong move. People who say it, यार कुछ नहीं होता, मैं कुछ कैसा नहीं होता, मैं I'm telling you on the ground experience. 500 मीटर के अंदर एसएमएस आ गया था, मैं no, this is it. You still want to go ahead with this? You can try. ठीक है? That is one. दूसरा, वहां पे जो ऑपरेशंस करते हैं वहां पे ना, सी बहुत कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको बहुत लिहाज रखती है आर्मी भी, एंड अदरवाइज आल्सो एक्चुअली देयर वाज अ टाइम जैसे जैनके में भी होता था, जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स होते थे, देयर वर कार्ड्स मेड फॉर देम, है ना, एंड दे यूज्ड टू मेक मूवमेंट एज पर दैट। इसी तरह असम में, नागालैंड में भी, व्हेन देयर वर कैंप्स वर देयर एंड पीस नेगोशिएशंस हैव बीन डन एंड द एक्ट्स हैव बीन साइंड, so during those duration if people used to move, so they also used to carry an identification card with particular insignias. If it is 1 star, so that means you can carry a small weapon with you, and if you barge into some Fauji, he will check authenticate details and he'll let you go. If he has got 2 star, he can carry this particular weapon. If he has got 3 stars, then he is mandated to carry one particular variety of weapon. And लोग officially भी बताते थे during that truce period कि they used to say कि our 50 people will go from here to here. Sir, we are moving
we want you to be aware of our movement, and we will take a halt here for 15 minutes, and they will quietly pass by. So ऐसा भी टाइम रहा है यार यहाँ पे, जहाँ पे लोग एक दूसरे के they rub shoulder and move along with each other. That kind of understanding, it requires a lot of patience, a lot of respect for each other and faith. And things have changed, of course. But operations ऐसे नहीं होते हैं कि ना, कई बार see one has to be, लोग कह तो देते हैं बड़ी आसानी से कि ऐसे कर दिया उन्होंने, वैसे कर दिया, बट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लोग पर्सनल ग्रज के लिए एक आदमी अपने पड़ोसी के बारे में गलत रिपोर्ट करता है. And if somebody does not apply your head, in that जोश कि भाई मैं बस पकड़ लूंगा आज, कुछ कर दूंगा, people land up in situations. So मैं जैसे हमेशा बताता था, कोई भी पास में आता, मैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी दी तो गरीब आदमी, कोई इनोसेंट, अगर मेरे हाथ से अगर थप्पड़ भी लग गया, मैं बिलीव मी, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, गॉड ओनली ब्लेस यू देयर. नेवर मिस इंफॉर्मेशन, आई विल नॉट एक्सेप्ट. गलत और गरीब आदमी और इनोसेंट आदमी की खबर कभी नहीं दोगे आप, है ना. ऐसा हो जाता है यार समटाइम. पीपल जस्ट कम बिकॉज ऑफ द पर्सनल ग्रज. किसी से लड़ाई हुई है, दे डिक्लेयर देयर ओन नोन वन, ए फ्रेंड और समवन, कि सर वो टेररिस्ट है. उसके पास 5 इंसर्जेंट आया था. How you all used to rectify that? कि कोई जो आपकी इन्फॉर्मर है वो बता रहा है कि दिस इज द पर्सन you need to work upon, बट वो जैसे बोला पर्सनल ग्लच पे उसको वो टेररिस्ट बना सकता है या इंसर्जेंट बना सकता है. सो हाउ यू यूज्ड टू रेक्टिफाई दैट पर्सन? नहीं, रेक्टिफाई नहीं है. देखो ऐसा होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज योर रेपुटेशन दैट ट्रेवल्स फास्टर इन द एनवायरनमेंट. If I am the man on the ground, people knew my conduct, they knew my behavior, my modus operandi, my style. They knew कि भैया age, gender, women, kids, and this guy always respect. मणिपुर में जैसे मैंने कभी भी यार ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू बिल्ड ए रेपुटेशन कि आदमी ना तो गलत काम करेगा, ना इसके साथ में कंपनी में कोई करेगा. कोई करेगा तो भैया उसको फिर सॉर्ट आउट अच्छे से करेगा. मेरे से सिर्फ एक बार हुआ था जहाँ पे गलती से किसी ने किसी की खबर दी, एंड यार उसमें माहौल, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मुझे लगा कि शायद ये सही है. मे बी ही वाज टू कलाकार एंड ही वाज एबल टू कन्विंस अस एंड ही प्रिटेंडेड टू बी टू वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी टुक आवर चांसेस. सो उस दिन ऐसा हुआ कि भाई मैंने उस बंदे के कुछ लगा दी 2-4 थप्पड़, बट आई रियलाइज्ड लेटर ऑन ना कि ये गलत है. तो उसके बाद में वहीं उसके घर पे ही था एंड आई फोल्डेड माय हैंड्स एंड आई सेड मेरा दोस्त गलती हो गई यार, एंड एक्चुअल में गलती हो गई मुझसे, आई एम रियली सॉरी, है ना. इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट मेरा जॉब भी ऐसा है यार, है ना. आई नीड टू टेक चांसेस समटाइम्स, बट गलती हो गई. मैं ये डंडा है यार, तेरा मन करता है तो उतना मेरे को ठोक सकता है, पिटाई कर सकता है मेरी, ठीक है, बट डोंट कैरी एनी ग्रज. इट वाज नॉट अगेंस्ट यू, बट इट इज माय प्रोफेशनल जॉब, एंड गलती सबसे होती है, आज मेरे से होगी. इट वाज माय बैड डे टुडे. सो बट ही डिड नथिंग, एंड मैंने कहा ऐसा भी नहीं सोचना है कि साथ में फौजी कुछ करेंगे. मैं, तुम लोग जाओ यार पीछे, मेरे लिए डंडा मारना है मार सकता है यार दोस्त, जो पिटाई करनी है तो कर ले, बट मन में ये नहीं रखना कि फौजी आदमी गलत काम करता है, गलत होता है, ठीक है. Believe you me that he became very emotional. उसने डंडा साइड में रखा, कहता नहीं साहब हाथ पकड़ के, क्या सर मैं समझता हूँ सर आपकी बात. मैंने कहा नहीं यार, बट वो गिल्ट मेरे को लग रहा है ना कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं गलत आदमी मेरे हाथ से पिट गया, दैट टू बिकॉज ऑफ, है ना, बड़ी गाय फ्रॉम योर ओन लैंड, है ना, ओनली फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट. बट देन ही सेड कि सर मैं आपको तो नहीं मारना चाहता, बट आपने मेरे को हाथ जोड़ा, माफी मांगा, बहुत है मेरे लिए, बट आप मेरे को परमिट करेगा तो मैं इसको ठुकाई जरूर करना चाहता हूँ. मैं आजा 1-to-1, and then उसके बाद में सॉर्टेड हिम आउट, तसल्ली करके उसने मतलब उसके सॉर्ट आउट किया. कहता सर नाउ आई एम सैटिस्फाइड. That thing happens. सर आपने कितने साल नॉर्थ ईस्ट में काम किए होंगे अप्रोक्सीमेटली? यार I was there, I was with Assam Rifle for 3 years, 3 year plus. Then I was with my unit for about a year. 4 years. Let's take about 4 years. Okay. सर लास्ट 2 महीने से मैंने एक चीज नोटिस किया है, विथ नो कंपैरिजन विद एनी मीडिया इंडस्ट्री. दिस इज, आपने बोला कि पूरे इंडस्ट्री इसको एक बस हॉर्नबिल के हिसाब से दिखाता है. मणिपुर में तो उतना बड़ा कुछ होता नहीं है, तो लॉट ऑफ पीपल. नहीं यार, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू. वी, इट इज नॉट लाइक मणिपुर. आई एम टेलिंग यू यार, ये तो मेरे को उस समय भी रियलाइजेशन था. मणिपुर इज छोटा सा स्टेट है कहने के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, दे हैव गॉट अ लॉ एंड शेयर यार इन द कंट्री. Whether it is about the boxing, the lady and a Commonwealth, you name a thing, यार. मणिपुर मतलब मैं जब गया था, I have seen. Describe you. I tell you very. मैं जो बताने जा रहा था वो यही था कि मेरे को जो महसूस हुआ सर कि these are one of the beautiful states I have seen, but these are not portrayed beautifully by the media. जैसे आप जब आप मान लो वहां पे पोस्टेड थे, जब आप छुट्टी पे आते थे तो कभी कभार वो गुस्सा नहीं आता था. जैसे अभी आजकल मुझे लगता है हम यहाँ पे मेट्रोपॉलिटिशियन की कितने हजारों बातें करते हैं, बट उस जगह के हम बात ही नहीं करते. एंड यू बीइंग अ पर्सन फ्रॉम दिस प्लेस, यू आर फाइटिंग इन दैट प्लेस
you know, you're doing for a good work, but कभी कभार वो grudge नहीं आता था कि you know these are also the part of the country, why we don't talk about this, maybe the good thing, maybe the bad thing. और एक मीडिया ने बनाए रखा कि like I will tell you my one sir, पहले मुझे भी लगता था कि मैं कोहिमा से बाहर जाऊंगा तो शायद गोली चल जाएगी. अब ब्यूटीफुली ट्रैवल नागालैंड है, ब्यूटीफुली. नहीं यार ऐसा नहीं है भाई. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसा नहीं है. बट अभी आपको लगता है कि लाइक दिस आर ऑल द मींस सम फेक थिंग्स हैज बीन शेयर्ड बाय ओवरऑल मीडिया, ऐसा नहीं है दिस स्टेट्स? यार ऐसा नहीं है. मीडिया को है ना जहाँ अपनी रोटी सेकने को मिलती है ना, दे कैन ट्विस्ट एंड सेल द स्टोरी है ना एज पर देयर रिक्वायरमेंट. प्रॉब्लम ये मीडिया का जो मैं देखता हूँ ना, मोस्ट ऑफ द न्यूज चैनल्स एंड अदर थिंग्स, जो एंकर्स होते हैं वहां पे, मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ वन और एंकर हु इज एक्चुअली वेरी सटल. Otherwise, they are supposed to be moderators, you know, in discussions and other things. But unfortunately, most of the time, buddy, they are talking like policy makers. है ना कि ये ऐसे है वो ऐसे है. उनको टट्टू कुछ नहीं पता whether it is Agniveer or anything. But they got big foul mouth and they'll speak anything and everything. From shit to sun, they can discuss anything. यार. I tell you, मणिपुर में मैं उस समय गया था यार. अभी तो बहुत पुरानी बात हो गई है. More than 2 decades. I found the best sportsmen those days. यार नंगे पैर, मतलब they used to organize events. कि नंगे पैर वहां पे लोग दौड़ रहे हैं. गर्मी होती थी तो लोग पानी डालते थे उस पे पर, so that people can run and you know they can participate. I'd also seen अपना elderly people, ladies 60 years 70 years, उनका भी एक छोटा सा रन कराते थे 2 kilometers. That is the level of enthusiasm where in country you know you find people of 70 years and going for a run. बट वो मुझे अभी भी याद है, मेरी पोस्ट से ही वो कांगला फोर्ट तक के लिए अपना एक छोटा सा वो अपना रन कराते थे 2 किलोमीटर के लिए. एंड पीपल ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड दे यूज्ड टू स्टैंड एंड क्लैप फॉर देम. है ना 70 इयर्स लेडीज यार, इमेजिन मतलब कि दौड़ रहे हैं यार, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं. एंड लोग जो मैराथन वगैरह कराते थे नंगे पैर दौड़ते थे उन दोनों, मैंने देखा. और उनके आगे आगे गाड़ी चलती थी और उससे पानी गिराते थे सो दैट वो नंगे पैर दौड़ रहे हैं, पैरों में तकलीफ कम हो. एवरी स्मॉल विलेज आई रिमेम्बर दे हैड द बेस्ट ऑफ द वॉलीबॉल. मैंने तो वो नॉर्मल देसी वॉलीबॉल देखी थी. The quality and the best volleyball I've seen in the remotest of the village in Manipur. ठीक है. एंड बड़े जोश के साथ में वो खेलते थे. एंड आई रिमेम्बर एक क्लब होता था निशा क्लब, तो आई कॉल्ड फ्यू गाइज टीम ऑफ देयर कि मैं यार मुझे गेम सीखना है, मुझे सिखाओ. एंड आई हैव सीन छोटे छोटे लोग बट क्या वॉली करते हैं, क्या सर्विस करते हैं, दे आर अमेजिंग. एंड देन आई हैव सीन टफ कोर्ट दोस डेज यार, आई एम टॉकिंग अबाउट. आई हैव सीन टफ कोर्ट इन गेम्स विलेज जहां पे अभी ये फुटबॉल का ऑर्गेनाइज हो रहा है. इट्स ब्यूटीफुल सेटअप. First time in my life I had seen turf court there in Manipur. They are amazing people when it comes to sports यार. मैं तो यही करता था whenever as a part of Sadbhavna, wherever I used to go in a village, I used to present them volleyball net, new volleyball and couple of things associated with the sport. They are amazing यार, कोई doubt ही नहीं है. सर आप लोगों का काम कैसे होता है on ground field? Like we as a my audience are mostly into that UPSC and you know we as mostly make videos with IAS and IPS officers. जब आप लोग कोई ऑपरेशंस या ग्राउंड लेवल पे काम जाते हो, डू यू ऑल कोऑर्डिनेट विद द डीएम्स एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स और हाउ डज इट हैपन? यार देखो उस टाइम में और अभी में बहुत फर्क है. अच्छा ठीक है. टुडे लाइक वी से इट इज अ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सेम वे टुडे नथिंग कैन बी डन इन आइसोलेशन. दोस डेज है ना पीपल यूज्ड टू फंक्शन इन लिटिल अपना वाटर टाइट कंपार्टमेंट. है ना. आर्मी यूज्ड टू डू देयर जॉब. फॉर द सेकंड पार्ट for अपना handing taking over, they used to hand over them to the police. They used to carry on the cases and the investigation report. But these days, because of the dynamics have changed, it is more about joint operations. You know, कोई भी चीज होती है वो मिल करके करते हैं. उसमें आर्मी भी होगी, पुलिस भी होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होंगी. बिकॉज हर एक का अपना एक मैंडेटेड चार्टर है ना. कि बाहर का जो आउटर सर्कल है वो भी सीआरपीएफ देखेगा. एनीथिंग टू रिलेटेड विद द क्राउड मैनेजमेंट एंड अदर थिंग वो है ना प्रेफरेबली पुलिस टू टेक ऑन. Why? Because they have got sun from the soil. Local people, they understand, they communicate, they connect better to people. So any kind of situation like that can be better handled by police. You know, the main thing which has to be done on ground can be taken by army. And the outer skirts, where with the weapon profile and other thing can be taken by paramilitary forces. So it is in the world of globalization, it is more than a joint and coordinated operation, whether it is north or northeast. वो पुराना टाइम खत्म हो गया कि सब अपना अपना काम करते थे. अभी मिलके काम करते हैं. एंड दैट इज द बेटर वे ऑफ डूइंग एनीथिंग. मिलके जो काम करते हैं उसमें हमेशा अच्छा नतीजा आता है. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. सर फ्यू थिंग्स आई वांट टू डिस्कस विद यू. लाइक जब मैं रिसेंटली ट्रैवल करने गया था वहां पे, तो आई हैव सीन देयर इज अ डेलिकेसी दैट नागालैंड पीपल लव्स डॉग्स and they're also especially the black dog. Yeah, black dog and the frog you will see in the market very easily available, है ना. But people like us who stays in the metropolitan city, we say कि यार लोग frog खाते हैं, ये कोई खाने वाली चीज है. But I understand, talking to the administration people, that
it's the survival skill they need to go. That is ये वहाँ that पे was रहना, more than खाना delicacy. पकाना It is a ये सब question नहीं of survival, you know. yeah. आप जिस जगह रहते हैं, आपके पास में जो चीज अवेलेबल है, you develop taste for that, है ना. Hmm. So it is a personal choice. No one should comment. भाई कोई आदमी वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है. That is your personal choice. मैं तो ये भी कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, यार एक आदमी है ना, who has got a balanced diet and is non-vegetarian, and there is a guy who's a vegetarian but then he eats like pretty hog like a pig. ठीक है, वजन भी बड़ा हुआ है, 10 लोगों के बराबर खाना भी खाता है, don't do any exercise. So it is up to an individual to decide कि who is good or who is not. These are personal preferences based on the things which are available on the ground and over a period of time what has become taste for them. So it's okay, यार, one should have respect. आपको जितनी चीज अपनी अच्छी लगती है, you should have equal respect for others, है ना. प्रॉब्लम यही है कि है ना कि most of the people they are unhappy, है ना, because other people are happy. अरे वो जो कर रहा है उसको करने दो यार, how does it bother you? So true. इंडिया में है ना कि अपनी लाइट चली जाती है तो बड़ा दुख होता है, पर जैसे बाहर से आ जाती है सबकी लाइट गई, people are so happy. Wow. This is so true. So sir, can you share something of your survival skills, like क्योंकि you have been to the jungles, so you have many experiences to share. So कुछ बताओ यार सर. एक बार हम लोग गए थे, there is a Loktak Lake if you have heard. हाँ, the Fumdis. है ना, floating islands है ना. हाँ, floating islands. बैठो यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद में ना वो चीजें इधर उधर दिखाई देती. मैं थोड़ी देर पहले यहाँ थी, उधर चली गई है ना, you lose bearing. So one day we had gone there and we were there and we were stuck up badly there. एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, खाने का हिसाब किताब बन नहीं रहा था कुछ भी, and we had literally nothing with us. So sir, like, the boys were good. Sorry to interrupt you. Like Loktak Lake, you've been to the operations, but it's a waterland. You all were in the waterlands. Yeah. Okay. So खाने के लिए कुछ भी नहीं था, nothing literally. So एक दो बंदे थे, those who were good, तो उन्होंने अपना दाव खुगरी लेकर के पीछे की तरफ गए, वहां से बैम्बू काटा. पहले उन्होंने थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा चावल था. पहले बैम्बू काटा, कच्चा बैम्बू था, कच्चे बैम्बू में ही चावल डाले, उसमें पानी डाला, वो खराब नहीं होता, वो उबलता रहता है, उसमें पूरा पक जाता है अच्छे से. दाल भी उसी में पकाई थोड़ी बहुत जो थी, और अपना चावल भी उसमें पकाया. जब लेकर के आए तो इतनी सारी थी, थोड़ी सी, और खाने वाले 10 लोग थे. मैंने कहा भाई ये क्या है, प्रसाद के तौर पे दोगे तुमने, इसमें कुछ खाना तो ठीक है, उबाल तो दिया, 3 घंटे बना कुछ भी नहीं. फाइनली वी सॉ एक छोटी कैक टाइप से पतली सी बोट आ रही थी, जिसमें बैलेंस बनाना भी बड़ा मुश्किल, बट वेरी स्मूथली है ना, वन गाय वाज ड्राइविंग अपना, ही वाज ट्राइंग टू ही वाज फ्लोटिंग दैट बोट. एंड जब वो हमारे पास में आया तो आई कुड सी ना 2 बाउल मटके रखे हुए थे उसमें, एंड सम होप वाज देयर कि आई विश कुछ हो इसके अंदर. तो उससे पूछा मैं, यार दोस्त इसमें कुछ है? कहता है फिश. मैं गुड फिश. तो उसमें देखा तो एक तो शर्मा जी थे, कहते साहब हाँ नहीं खाता. तो देख ले भैया, अच्छे है, मोर देन हैप्पी, हमें तो भूख लगी है, एक आदमी कम हो गया खाने वाला, शर्मा जी आप मरोगे. क्या साहब मैंने कभी खाया नहीं, मैं तो आज देख ले मूड है, कहते साहब भूख बहुत लग रही है, मुश्किल हो रहा है. मैं तो देख ले तुम्हें खाना है नहीं खाना, तो डिसाइड कर ले. फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम ही आल्सो ट्राइड. कहते साहब कैसा टेस्ट होता है? मैं खा के देख, पता लगेगा. क्या सब कभी खाया नहीं, सब उल्टी हो जाएगा, मत खा. फाइनली यार हमने वो फिश ली उससे, एंड ही वाज क्वाइट जेनरस. उसने बहुत कम पैसे में हमें पूरा मटका भर करके फिश दी थी. आई थिंक दोस डेज ये टेकन, आई थिंक कितने रुपए लिए थे हमसे? 200 रुपए ऐसा कुछ चार्ज किया था दैट जेंटलमैन. हमने लिया, हमारे पास में सिवाय एक माचिस के जलाने के और कुछ नहीं था भाई. तो वो फिशेस वगैरह बनाई, लोग बने हुए थे उसके अंदर आग में करके, एंड वी हैड नथिंग. तो उसके फिन्स वगैरह भी थे, वो एक लकड़ी से साफ करके, नो सॉल्ट, नो पेपर, नो मिर्च, नथिंग, एब्सोल्यूट टेस्टलेस, बट समथिंग हैड टू गो इनसाइड सो दैट वी कुड सिट फॉर अनदर, है ना, डे और 2. चलाया काम हम लोगों ने, ठीक है. फिश वाज द ओनली थिंग दैट वाज अवेलेबल देयर, और हमारे पास कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं था. You didn't tried anything in the jungles? Any other wild? We have tried. What sir? We have tried boars. We have tried wild boar. अच्छा. Wild boar, and boys are quite good with this, है ना, to make, you know, उनके लिए कैचेस बनाने हैं, ठीक है, आपने अलग अलग टाइप के फंदे बनाने हैं. They are quite good with this. It takes time. लोगों के अलग अलग तरीके हैं. कुछ लोगों को मैंने देखा बेहोशी की दवा है ना, चावल में मिला के रख दो, वो आएगा तो बेहोश हो जाएगा कहीं ना कहीं. दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स पीपल डू. नहीं सर, ये थोड़ा बताओ क्या है. चावल के अंदर ना अपना दवाई डाल दी, जिससे है ना थोड़ा से आपके स्टिमुलस स्लो हो जाएंगे, थोड़ा बेहोश होगा, तो थोड़ी देर खा के फिर उसका कहीं ना कहीं वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा और एक जगह लेटा हुआ मिलेगा आपको. दिस आई हैव सीन, है ना, बदमाशी करते हुए मैंने देखा लोगों को. दैट इज वन. दूसरा, फंदा बना देते हैं, फंदे के अंदर फंस जाता है. दैट इज ट्रू.
and few people and they make different kind of thing using, so that it cause damage. So अलग-अलग तरीके हैं. Yes, pork is one of the thing and which is easily available and we had tried. Again, matter of survival. You can't carry, जब आप 7 दिन 10 दिन बाहर रहते हो, you cannot carry that much of ration only. You're not going for a picnic. कि 10 दिन का खाना लेकर के चलोगे, 10 दिन के लिए हथियार भी ले जाओगे, ammunition. Not humanly possible. One would need to be practical. या तो हथियार ले लो या 10 दिन का खाना भी नहीं ले जाओ आप लोग साथ में. पानी भी चाहिए. 10 दिन का अगर खाना लेके जा रहे हो, पकाने के लिए उतना पानी भी चाहिए. How are you going to carry? You're not superhuman, ना. सुपरमैन हो सकता है, कर सकता है, but we are not Superman because Superman तो अंडरवियर पैंट के ऊपर पहनता है. We are normal people. We do it other way around. नहीं. So why do you become a Superman when you are not? सर वो जो डिस्कवरी वगैरह में दिखाता है कि जंगल में ऑपरेशंस में गंदे ड्रेन का पानी भी पी जाता है, वो सब सच है? ये सी देखो, मूवी में दिखाना अलग चीज है, बट इतनी है ना बुरी नौबत आती नहीं है. ठीक है, बिकॉज जब पहाड़ों में होते हो, जंगल में होते हो, कुदरती तौर पे आपको पानी मिल जाता है. ठीक है. ओनली थिंग इज यू शुड नो है ना, फ्लोइंग वाटर पहली बात तो कभी खराब नहीं होता, बहता हुआ पानी. सो कोई बेवकूफी है जो दिखाता है ना कि बहता हुआ पानी है उसमें कीचड़ है. अरे यार कहाँ इतनी नौबत आ रही है. पहाड़ों में जब भी पानी मिलेगा साफ सुथरा ही मिलेगा. आप उसका पीएच लेवल चेक करके देखो, इट इज बेटर देन एक्वागार्ड, यू नो. सो व्हाई टू पेंट ए रॉन्ग पिक्चर की कीचड़ में थे और बहादुर बनने के लिए जबरदस्ती दिखा रहे हैं. नो, यू गेट फ्रेश वाटर इन बड़ी. जंगल में चाहे एक एक बूंद टपक रही हो, आपको फ्रेश पानी ही मिलेगा. इट इज नॉट दैट डिंजी काइंड ऑफ वाटर. नंबर 1. ठीक है, बट यस सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं. राजस्थान में आई थी हमारे साथ पराक्रम में जब हम गए थे. उस जमाने में तो फिल्टर भी नहीं होते थे यूनिट में, कोई बहुत ज्यादा गिनती के फिल्टर होते थे. जब हम लोग गए थे, वी वर डिप्लॉयड इन राजस्थान फॉर 1 कंप्लीट ईयर. यार 1 साल एक टेंट के अंदर 180 पाउंड टेंट में ऐसे 3 ऑफिसर्स रहे. बारिश, गर्मी, सर्दी, सारे मौसम उसमें निकाल दिए हमने. ठीक है, उसी टेंट में टॉयलेट है आपका, उसी टेंट में 3 लोग सो रहे हैं, सब कुछ वहीं से हो रहा ऑपरेट. एंड जब गए थे तो पानी कितनी दिक्कत थी, बिकॉज द एंटायर आर्मी वाज मोबिलाइज्ड है ना ड्यूरिंग पराक्रम. मतलब खिलौनों की तरह से ऐसे टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कहाँ थी किसी को नहीं पता लग रहा था. जब हम लोग पहुंचे तो हम लोग एक आईजीसी करके कैनाल है बहुत बड़ी, इंदिरा गांधी कैनाल. यार इट वाज टोटल मडी वाटर. वो लोग वो पानी आता था जिसके अंदर एक्चुअल में रेत जैसा होता था, तो वो पीते थे. ठीक है, मैंने कोई आदमी बीमार होते हुए नहीं देखा. कुछ रिसोर्सेज भी नहीं थे तो उस पानी को पीते थे. थोड़ा बहुत जो कपड़े से छान लिया एंड उसके बाद में ना पानी में थोड़ी फिटकरी डालते थे उसको साफ करने के लिए, या फिर पीने के बाद में, खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाते थे. पीपल यूज्ड टू से कि इसे सेटल हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा. और मे बी क्रेडिट गोज टू फौजी ट्रेनिंग एंड दिस थिंग. कोई बीमार नहीं हुआ, चल गया यार, 1 साल निकाल दिया, है ना. बट ये जो जंगल में दिखा रहा है और पहाड़ों में दिखा रहा है ना कि ऐसा पानी मिल रहा है, भाई उसको है ना बहुत सख्त जरूरत है एक बारी उस इलाके में ले जा करके ना दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पानी साफ मिलता है. अरे वाटर हार्वेस्टिंग आप जाके देखो, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल यू सी कुकीज. दिस इज व्हाट दे डू ऑन द हिल टॉप्स. एंड उनके तो पहाड़ में मतलब तालाब भी बने हुए हैं. Nobody can believe. First time I saw in this. Managed many teams. You have handled many ups and downs. So what would be your ideas or tips for us, many youths for us? Nothing here. Here it is as simple as take life as it comes. है ना. Life itself is a great teacher. मैं हमेशा कहता हूँ, you know, if one door is closed, na, there is some other opportunity knocking for you. Just keep going. You know, every day is a new beginning. And when one wake up in the morning, you should wake up with this thing, this is a day worth living. You should have some purpose in the life. If you got some driving force, some purpose, now believe me, काम करने का मजा ही अलग है. And you said कि मैंने अकेले शुरू किया था. All good things start from single step. To start with, then even 1 is a magical figure. I also started यार. मैं जब आया था लोग बोला किसने किया है इतने बड़े सेटअप ये वो. मैंने कहा भाई मैं हूँ. किसने पूछा था मुझसे? somebody asked me कि हाँ आपके साथ में कितने लोग हैं टीम में, सपोर्ट है. मैंने कहा मेरे पास में 2 हाथ हैं. कहते सर मतलब. मैंने कहा मैं सुबह जब खड़ा होता हूँ तो मैं पहले झाड़ू पोछा लगाता हूँ, तो उस समय मैं सफाई वाले का कंजर्वेसी का काम करता हूँ. बोला देन मैं देन उसके बाद में अपना ऑफिस खोलता हूँ, मैं ऑफिस बैरियर का काम करता हूँ. बोला देन मैंने कहा देन आई डू फिजिकल अपना एंथुसिस्ट का काम करता हूँ. आई टेक देम फॉर अपना फिजिकल रन्स एंड डू एक्सरसाइज. मैं उसके बाद में मैं ऑफिस में आता हूँ. आई डू ड्यूटीज ऑफ मेंटोर एंड टीचर. फिर मैं क्लासेस देता हूँ एसएसबी के बारे में. एंड मैं उसके बाद में शाम को मैं स्पोर्ट्स टीचर में आता हूँ उनके साथ में. उसके बाद में पार्टी एंड एवरीथिंग, इवेंट मैनेजमेंट. मैं क्या जब तक 2 हाथ हैं, बारी बारी टाइम स्लॉट में सारे काम कर लेता हूँ. वो कहते हैं ना बिलीव मी यार. हाँ यार सी कुछ नहीं है, 1 है 2 है टीम से. अच्छा सारे लोग पूछते हैं टिप्स क्या है. टिप कुछ नहीं है यार किसी चीज के लिए. द ओनली टिप इज जस्ट बी योरसेल्फ. जो मन कहता है वो करो, पूरी शिद्दत के साथ में करो, नतीजा पक्का आ जाएगा.
मैंने आज तक है ना, अभी यहाँ पे आज इतने सारे पेरेंट्स आए थे, बच्चे आए थे, कहते समथिंग गुड। मैंने कहा कहीं पे पोस्टर देखा मेरा? बोला नहीं सर, हम वही बात कर रहे थे कि कहीं पोस्टर नहीं। मैं अंदर घुसने के बाद पोस्टर देखा? बोला नो सर। मैंने कहा बहुत लोगों ने एडवाइस किया कि इससे मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है। मैंने कहा यार देखो ऐसा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, योर वर्क शुड बी योर ब्रांड। ठीक है, आई डोंट बिलीव इन दिस पोस्टर बिजनेस की भी यहाँ पे पोस्टर देख करके आइए, दूसरों को देख के अगर आप ट्रेनिंग लेने आए फिर क्या ट्रेनिंग करोगे आप? आई नेवर यूज्ड एनी पोस्टर्स। मैं एक बार सिर्फ ऐड डालता हूँ कि दिस इज माय ट्रेनिंग, है ना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय नेक्स्ट बैच, उसके बाद दोबारा कुछ नहीं करता। ठीक है, एंड यार ना तो कोई पोस्टर की जरूरत पड़ी ना कुछ और। एंड टुडे आई हैव गॉट स्टूडेंट्स एंड पीपल फ्रॉम अंडमान निकोबार, फ्रॉम कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, यू नेम ए प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। बिकॉज मुझे लगता है कि जिसको जरूरत है एंड और जो अपना होमवर्क करता है ना, जिसने मेरे को ढूंढ लिया कि कहाँ बैठा है एक आदमी कुछ कर रहा है, डेफिनेटली क्वालिफाइज टू बी माय स्टूडेंट, और मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगा उस पर। सो आई विश यू एंड योर टीम, यू विल गो अ लॉन्ग वे यार। अपना काम मेरा खुश होके करना, यू मस्ट एंजॉय व्हाट यू डू, दैट इज द ओनली है ना एडवाइस आई कैन टेल यू एज ए एल्डर ब्रदर, कि जिस चीज में खुशी मिलती है ना, इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग एंड डू इट फ्रॉम द हार्ट, यू विल नेवर रिग्रेट दैट थिंग। सो डू यू फील कि जो हम सोचते हैं, जैसे आपने बोला ना, जैसे जो चीज अभी मैं कर रहा हूँ मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है, डू यू बस फील कि हम गो जो विद सोच इट। रहे हैं वो हो जाता है? ड्रीम्स कम ट्रू, डू यू बिलीव? 100% ट्रू। आप कभी शिद्दत से दिन में 1000 बार झूठ बोल के देखो कि मैं बहादुर हूं, शाम तक वो आएगी फीलिंग। नहीं भी उन्होंने कि यार कुछ भी हो, बहादुर तो मेरे को बनना है यार। पैशन से तो कोई भी चीज है, झूठ बोलो तो आदमी उसको भी सच आमदा करने में है ना आ जाता है कि मैं करके दिखाऊंगा मैं पक्का। 100% यार। जो चीज आदमी यहां से फील करता है ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी बात सही है, आपकी बात में दम है ना, तो वो आपकी आंखों में दिखाई देगा, आपके चेहरे पे, आपके एक्सप्रेशन पे दिखेगा, आपकी आवाज में झलकेगा वो चीज, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। व्हाट यू फील फ्रॉम द हार्ट, ऑलवेज गो फॉर इट यार। डाउट ही नहीं है उसके अंदर कोई। नतीजा कैसे नहीं आएगा? मैं तो कहता हूँ तू मेरे को लगड़ा आदमी दे दे 1 महीने के लिए, इफ आई डोंट मेक हिम स्टैंड ऑन हिज लेग देन आई एम नॉट मी। ठीक है, गूंगा आदमी दिखाई एक बार तो मैं उसकी आवाज निकाल दूंगा पक्का। शिद्दत से काम करो यार, पक्का होता है 100%। मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज से एलर्जी है, द मोमेंट समबडी सेज ना दिस कैन नॉट बी डन, उस समय पहली चीज मैं ये करता हूँ, मैं आई स्टॉप डूइंग एवरीथिंग। मैं अब भैया मेरे को ये करना है पहले। सो पीपल इन माय कमांड दे यूज्ड टू से कि यार गलती से मत बोलना, सीओ हो रहा है, ये नहीं हो सकता। ये भाई ने सारे काम छोड़ के बोला है, भाई इधर आओ, जो तुम्हारे को अब सबको पेला जाएगा और ये करके दिखाएगा। -38 डिग्री टेम्परेचर, पीपल सेड पीटी नहीं करनी। मैंने पहले दिन बताया था, बाकी कुछ भी है, किडनी चाहिए मांग लेना, ये मत बोलना फिजिकल्स बंद कर। मैं पीटी होगी मतलब होगी। तो पहले एक बंदा आया, सर वो -38 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा, फिर दूसरा आया, सर वो बहुत ठंडा हो रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली तो ये था कि पीटी बंद करा दो सर। मैं किसको ठंड लग रही? बोलो सर सब ऑफिसर जवान सब बोल रहे। फिर इकट्ठे हो गए 4-5 लोग, सर बंद करना पड़ेगा, बहुत ठंडा हो गया। मैं तुम लोग पूछ रहे हो, मेरे को इंडिकेशन दे रहे हो, बता रहे हो। कहता है सर जनता कह रही है कि बहुत ठंडा हो गया। अच्छा, मैं एक काम करो, मेरे रूम के बाहर रिपोर्ट करो। आई गॉट देम टू रिवर। मैं शर्ट उतारो, बोलो सर मैं शर्ट उतारो। सबकी शर्ट उतारी। मैं बनियान उतारो, बोलो सर हाँ उतारो उतारो। उसके बाद में आ जाओ अंदर, फिर मैं चला गया नदी में, मैं सारे आ जाओ। देन आई इंश्योर दैट दे टेक ए होली डिप। दिलाई सभी को। मुझे पता था अंदर तो गालियां दे रहे होंगे सारे, बट मैं भी बदमाश हूँ, मैंने पहले बोल दिया सभी को ना, मैं साला तुम लोग जो भी मन में सोच रहे हो मेरे बारे में, गाइस सेम टू यू, पहले बता देता हूँ। फिर सबको अंदर डुबोया, उसके बाद में दे टुक होली डिप एंड देयर आफ्टर दे स्टार्टेड एंजॉयिंग। देन आई सेड मैं इशू द लिकर टू एवरीवन, बॉनफायर करो, लगाओ उनके लिए खाना पीना। तो नेवर, इट जस्ट स्टेट ऑफ माइंड यार। ठीक है, बट पीपल अंडरस्टूड देयर आफ्टर कि यार दिस नथिंग, बिकॉज फिजिकल मेंटेन रखें, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, एक भी आदमी कभी बीमार नहीं हुआ, किसी आदमी को चोट नहीं लगी, अदरवाइज पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ वहां पे। भाई बिकॉज ठंड ज्यादा, बाहर नहीं निकलेंगे। मेरे वालों को बड़ी, जहाँ पे आदमी वॉक करने नहीं निकलता था, मैं 35 केजी लगा के 50 केजी लगा के एकदम कि मैं 10 घंटे 12 घंटे में दौड़ के जाएंगे, करते थे लोग यार, एंड दैट्स व्हाई नो वन हैज फॉलन सिक। सी देयर इज नथिंग फॉर फ्री यार, एवरीथिंग कम्स एट सम कॉस्ट एंड प्राइस। वेदर इट इज अ गुड स्लीप, अच्छी नींद भी चाहिए तो दिन में मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा खाना भी एंजॉय करना है, और वजन ना बढ़े तो यार शरीर को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। नो फ्री लंचेस यार, everything has got some cost and one is to be willing and voluntary to pay for it, you know. Exactly, so true. Yeah. So the only reason I like people from defense background, the reason is आप लोगों के साथ अगर आधा घंटा बात की जाए ना दिन में, तो या तो एक हफ्ते में पूरा हफ्ते का एनर्जी बूस्ट हो जाता है। अब मेरे एक हफ्ते के लिए आप एक मतलब रीबूस्टर दे दियो, I can work daily. So I hope you like. Thank you so much. It's a pleasure to talk to you, sir. Same here. If you have any feedback, because you have mentored so many people, if you have any feedback for me so that I can grow in life,
Last 1 minute. Nothing here. Just do it very passionately and get connected. As such, you are doing traveling places. That itself is a great education. You know, when you are traveling, only one suggestion which I'll tell you, because now I had also thought, a lot of people they've been telling me, ki you have got a lot of things to share and you can write well. So I had also thought, I'll come up in sooner or later. I'll come up, but I'm going to get the common man. There are so many heroes, unsung heroes from the common walk of life, and they're just around us. People are not aware of them. But it is something like when we get them on the screen, people can correlate to them with great ease, So whenever you're visiting to the places, you should have some portion of the clipping or something, other than the appointments or something, the man on the ground, whether it is from Nagaland or Manipur or something. A youngster also, a Mira Paibi means mother. This is what they call elderly ladies in Manipur. So those mothers, young boys, a civilian working, a teacher, from different walk of life, you should have some amount of share from them also. Sure. है ना, अदरवाइज क्या होता है, मीडिया अपनी ओपिनियन दे देता है, फौजी आदमी अपनी ओपिनियन दे देता है, ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ओपिनियन दे देगा. और मैं हमेशा कहता हूं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन दिस एंटायर बिजनेस इज द कॉमन मैन. Exactly. ठीक है, वो कहीं नहीं दिखाई देता कैंपस पे. Yes. वो भी आना चाहिए, कॉमन आदमी भी ना. Very If you get them, है ना, तो probably it will add a lot of value to this. Yes. है ना. Thank you so much once more, sir. Jai Hind. Please motivate us like this. Jai Hind, God bless you and wish you all the best, Veer. Thank you. Thank you.